Good morning, dear students. Today we will discuss on solution of polynomial and transcendental equation by regular falsi method, which is very important method to find the solution of polynomial and transcendental equation. Let us see regular falsi method, which is also known as method of false position. Let f(x) equal to 0 be an algebraic or transcendental equation. In this method, we choose 2 points x0 and x1 such that f of x0 and f of x1 are of opposite sign. That is, f of x0 into f of x1 is less than 0. तो हमने अगर हमें कोई भी ट्रांसेंडेंटल या पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन में हम 2 पॉइंट्स इस तरह से चूज करेंगे. दीज आर सक्सेसिव पॉइंट. In that point, function has the positive and negative values. Okay. Then the root of the equation f of x equal to 0 lies between x0 and x1. यहाँ हमने x और y प्लेन लिया. यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम x0 ले लेते हैं, यहाँ पे x1 x0 पे फंक्शन की वैल्यू f of x0 पॉजिटिव यहाँ पे हमने ले लिया. यहाँ पर पॉइंट x1 पर f of x1 नेगेटिव ले ली. यहाँ पर कोई पॉइंट a लिया और यहाँ पे b, दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. तो a के जो कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, x0 एंड f of x0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b is x1 f of x1. Okay. Let the equation of the straight line AB is y minus fx not equal to f of x1 minus f of x naught upon x1 minus x naught into x minus x naught. The straight line AB cuts the x-axis at x equal to x2 and y equal to 0. So here we take in place of y हमने यहाँ पे 0 ले लिया. इन प्लेस ऑफ x2 ले लिया. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट into x2 minus x naught, which will be written as x2 minus x naught equal to minus x1 minus x naught upon f of x1 minus f of x naught into f of x naught. Therefore, x2 equal to x naught minus x1 minus x naught upon f of x1 minus f of x naught into f of x naught. Therefore, by regular falsi method, the first approximation is x2 equal to x naught minus x1 minus x naught upon f of x1 minus f of x naught into f of x naught. इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. अब हमने 2 पॉइंट्स x1 और x0 पहले से ही फाइंड कर लिया है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रख रही है. f of x1 भी हमने फाइंड कर लिया है, f of x0 भी हमने फाइंड कर लिया है. इस इक्वेशन में हम x0, x1, f of x1 और f of x0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2 मिल जाएगा. ठीक है. आफ्टर that we find f of x2. If f of x0 and f of x2 are of opposite sign, then the root lies between x0 and x2. अगर f of x0 और f of x2 पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रख रहा, उस केस में जो इक्वेशन का रूट होगा वो x0 और x2 के बीच लाई करेगा. In that case, replacing x1 by x2 in equation 1, we get the second approximation x3 equal to x0 minus x2 minus x0 upon f of x2 minus f of x0 into f of x0. But if f of x1 and f of x2 are of opposite sign, then the root of the equation
f of x equal to 0 lies between x1 and x2. In this case, replacing x naught by x2 in equation 1, we get the second approximation, x3 equal to x2 minus x1 minus x2 upon f of x1 minus f of x2 into f of x2. ओके, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि f ऑफ x2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है कि नेगेटिव मिल रही है। अगर f ऑफ x नॉट जैसा कि अपन ने देखा पॉजिटिव था, तो f ऑफ x2 अगर नेगेटिव मिल रहा है, उस केस में हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर f ऑफ x2 सपोज करिए पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसके पहले f ऑफ x1 नेगेटिव मिला था, ऐसे केस में जो फंक्शन इक्वेशन का रूट होगा वो x1 और x2 के बीच लाई करेगा, और उस केस में हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करना होगा वो क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इनटू f ऑफ x2. ओके, this process is repeated till the root is found to be the डिस्चार्ज एक्यूरेसी। तो इस तरह से हम ये अप्रोक्सीमेशन तब तक फाइंड करते जाएंगे जब तक कि किन्हीं दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जिस डेसिमल पॉइंट तक इक्वेशन का रूट फाइंड करने को बोला जाए उस डेसिमल पॉइंट तक इक्वल नहीं मिल जाए। ओके, अब आइए देखते हैं, अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अपन ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। देन अब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स में जब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ 0 मिलेगा। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 5 विच इज नेगेटिव। देन एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 6 विच इज आल्सो नेगेटिव। एट एक्स इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 1 विच इज आल्सो नेगेटिव। At x equal to 3, f of 3 equal to 16, which is positive. So since f of 2 and f of 3 are of opposite sign, therefore the root of the equation f of x equal to 0 lies between 2 and 3. Okay, so here we take x not equal to 2 and x1 equal to 3, then f of x not equal to f of 2 equal to minus 1 and f of x1 equal to f of 3 equal to 60. ओके, अब यहां पर हम रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज करके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज x2 equal to x naught minus x1 minus x naught upon f of x1 minus f of x naught into f of x naught। यहाँ पर हमने x naught, x1, f of x naught और f of x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो x2 हमें 2.0588 मिल रहा। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लिया। नाउ वी फाइंड f of x2, f of x2 equal to f of 2.0588 which is equal to minus 0.39105 which is negative। तो f of x2 हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसके पहले f of x1 हमें पॉजिटिव मिला था। तो सिंस f of x1 and f of x2 are of opposite sign, therefore the root lies between x1 and x2. So here x1 equal to 3, x2 equal to 2.0588 and f of x1 equal to f of 3 equal to 16 and f of x2 equal to f of 2.0588 equal to
minus 0.39105. Now replacing x naught by x2 in equation 1, we get यहाँ पर x naught को x2 से हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा जिसको हमें x3 से डिनोट करेंगे. Therefore the second approximation is x3 equal to x2 minus x1 minus x2 upon f of x1 minus f of x2 into f of x2. हमें x1 x2 f of x1 और f of x2 की वैल्यू पता है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी फार्मूले में और इसको सॉल्व किया तो x3 इक्वल टू हमें मिल गया 2.08125. अभी हमने देखा कि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक x2 और x3 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होगा. नाउ वी फाइंड f of x3. f of x3 इक्वल टू f of 2.08125. f of x में 2.08125 हम पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो f of x3 हमें मिल रहा है -0.14735 विच इज नेगेटिव. तो यहाँ भी हमने देखा इसके पहले f of x1 पॉजिटिव मिला था, f of x3 यहाँ नेगेटिव मिल रहा है. तो सिंस f of x1 and f of x3 are of opposite sign, therefore the root lies between x1 and x3. तो नेक्स्ट रूट x1 और x3 के बीच लाई करेगा. तो here let x1 equal to 3 and x3 equal to 2.08125. Then f of x1 is f of 3 which is equal to 16 and f of x3 is f of 2.08125 which is equal to -0.14375. अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए अगेन अपन इक्वेशन 1 में जाएंगे और इक्वेशन 1 में x नॉट को x3 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा. नाउ रिप्लेसिंग x नॉट बाय x3 इन इक्वेशन 1, वी गेट द थर्ड अप्रोक्सीमेशन x4 इक्वल टू x3 minus x1 minus x3 upon f of x1 minus f of x3 into f of x3. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x1 x3 f of x1 और f of x3 की और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x4 की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू मिलेगी 2.0896. अभी भी हमने देखा कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू इक्वल नहीं है थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होगा. नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन f of x4 फाइंड करेंगे. तो नाउ f of x4 इक्वल टू f of 2.0896 which is equal to -0.0551 which is also negative. तो यहाँ पर f of x4 भी हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसके पहले f of x1 हमें पॉजिटिव मिला था. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंस f of x1 and f of x4 are of opposite sign, therefore the root lies between x1 and x4. नेक्स्ट रूट x1 और x4 के बीच लाई करेगा. So replacing x naught by x4 in equation 1. इक्वेशन 1 में x naught को x4 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा. तो so replacing x naught by x4 in equation 1, we get the fourth approximation x5 equal to x4 minus x1 minus x4 upon f of x1 minus f of x4 into f of x4. ओके, x1 x4 f of x1 और f of x4 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. वो वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो x5 इक्वल टू हमें मिलेगा 2.0927. अभी भी x4 और x5 की वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही है जिस डेसिमल पॉइंट तक हमें रूट फाइंड करना है. तो इसके लिए अगेन अपने को नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होगा और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमें f of x5 फाइंड करना होगा. तो नाउ f of x5 इक्वल टू f of 2.0927. f of x में x की जगह 2.0927 पुट कर देंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -0.0206 विच इज नेगेटिव. तो यहाँ भी हमने देखा इसके पहले f of x1 पॉजिटिव मिला था, f of x5 नेगेटिव मिल रहा है. तो अपन ने क्या देखा, सिंस f of x1 and f of x5 are of opposite sign,
Therefore, the root lies between x1 and x5. तो नेक्स्ट रूट x1 और x5 के बीच लाई करेगा. So replacing x0 by x5 in equation 1, we get the fifth approximation x6 equal to x5 minus x1 minus x5 upon f of x1 minus f of x5 into f of x5. Okay. x1, x5, f of x1 और f of x5 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. वो वैल्यू इसी फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन मिलेगा जिसे हमने x6 से डिनोट किया है. तो देयरफॉर x6 इक्वल टू 2.0939. यहां भी हमने देखा कि x5 और x6 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल नहीं मिल रही है. तो अगेन हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाना होगा. तो उसको फाइंड करने के लिए हमें f of x6 फाइंड करना होगा. तो नाउ f of x6 इक्वल टू f of 2.0939 and which is equal to minus 0.0095 which is negative. इसके पहले हमें f of x1 पॉजिटिव मिला था. तो यहाँ भी हमने देखा since f of x1 and f of 6 are of opposite sign, therefore the root lies between x1 and x6. नेक्स्ट रूट जो होगा x1 और x6 के बीच लाई करेगा. Therefore the sixth approximation is x7 equal to x6 minus x1 minus x6 upon f of x1 minus f of x6 into f of x6. यहाँ भी हमने क्या किया कि x0 को x6 से रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 1 में. तो हमें 6 अप्रोक्सीमेशन मिल गया जिसको कि हमने डिनोट किया x7 equal to x6 minus x1 minus x6 upon f of x1 minus f of x6 into f of x6. x1 x6 f of x1 f of x6 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे तो x7 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू होगी 2.0944. ओके. तो यहाँ पर हमने देखा कि since x6 and x7 equal to 2.094 correct to 3 decimal places. x6 और x7 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इक्वल मिल रही है. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज x इक्वल टू 2.094. इस तरह से गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया और जो रूट हमें मिल रहा है वो रूट मिल रहा है x इक्वल टू 2.094. ओके. थैंक यू.